Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this lecture we are going to study the topic of refund under GST. The topic name is refund under GST. Yes. Now this is the most important topic of your CA final, CMA final syllabus. In CA Inter we are not having this topic. Okay. So this is a fresh topic for CA final, CMA final. Okay. So this is a very important topic as I have already mentioned. And in this topic we are going to cover 8 marks of your syllabus. Okay, कम से कम 8 मार्क्स के लिए तो ये एक क्वेश्चन आता ही है इस टॉपिक में से, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना है. क्लियर है? एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक विथ एनालिसिस, और हर एक सिचुएशन हम समझेंगे किस तरीके से रिफंड क्लेम करना है, कौन से सिचुएशंस में रिफंड मिलेगा, what are the important points to file refund, and how to compute the same. Okay, so each and every provision of this refund chapter will be covered in this lecture. Okay, so let us go through the PDF in front of you. Okay, so let me first give you the overview of this chapter. In this chapter we are going to study first of all the circumstances in which a refund is eligible. Then we will be learning the relevant date concept. Next one is how to compute the refund in two scenarios, that is inverted duty structure and refund of unutilized input tax credit. Next one would be the documentation for a refund. Next is timelines for refund. Then rule 95A, which is for retail outlet claiming refund of accumulated input tax credit. Next one is the master circular which guides us to claim refund. Okay, रिफंड क्लेम का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरीके से रिफंड क्लेम आपको सैंक्शन होगा, ये सब कुछ गाइडलाइंस लिखा हुआ है इस सर्कुलर में. हम इसके भी कुछ हाइलाइट्स देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन वी विल बी सीइंग रूल 96B विच वाज द अमेंडमेंट फॉर लास्ट अटेम्प्ट, एंड देयर इज वन सर्कुलर 137 that also we are going to see. So with this overview, let me give you the introduction to this chapter. So we will be now coming on to the whiteboard. Okay, आ जाओ व्हाइट बोर्ड पर. ठीक है. अब जीएसटी में रिफंड हर किसी को नहीं मिलता. पहले तो आप ये बात समझ लो, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हर उस पर्सन जिसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है उसको रिफंड नहीं मिलता है. रिफंड इज ओनली अलाउड इन ब्रॉडली स्पीकिंग टू सर्कमस्टेंसेस. ओके, टू सर्कमस्टेंसेस. ये फर्स्ट वाला है एंड ये सेकंड वाला है. बस सेकंड में काफ़ी सारे सिनेरियोस हम डिस्कस करेंगे, चार्ट से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज फॉर जीरो रेटेड सप्लाईज. जीरो रेटेड सप्लाईज जीरो रेटेड सप्लाईज एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. ओके, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. इन दोनों केसेस में आपको रिफंड किसका मिलता है? अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का. किसका रिफंड मिलने वाला है आपको? अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके, unutilized ITC मतलब such portion of ITC which is availed by you, but since you are not having any output tax liability, this ITC is still remaining in your electronic credit ledger. Okay, so you can claim refund of that as per the formula laid down in rule 89.4 and 89.5. Okay, but only in these specific cases. What are these cases? Zero rated supplies plus zero rated supplies or inverted duty structure. Okay, ये दो केसेस है. एंड जो सेकेंड पार्ट है इसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज है. जैसे आपने रॉन्ग टैक्स पेमेंट किया है. ओके, तो रॉन्ग का रिफंड क्लेम करो और राइट टैक्स पेमेंट करो. ठीक है. नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ टैक्स टू CTP NRTP. ठीक है. रिफंड ऑफ टैक्स टू टूरिस्ट, रिफंड ऑफ टैक्स टू रिटेल आउटलेट्स. ये सारे मिसलिनियस जो केसेस हैं ये सारे पॉइंट नंबर 2 में आते हैं. ठीक है. ये हम स्पेसिफिकली चार्ट से करेंगे, तो यहाँ पर हम फिलहाल इधर फोकस नहीं कर रहे. नाउ आवर मेजर फोकस वुड बी ऑन दिस एरिया, that is zero rated supplies and inverted duty structure. So let us move on to discuss this on this whiteboard. First transaction, इसके अंदर मैं A और B करता हूँ. First one is A, zero rated supplies. Zero rated supplies. So first of all, let us understand the meaning of zero rated supplies. There are three kinds of transaction which are termed as zero rated supplies. कौन से एकदम easy.
Export of goods. Export of goods. What is the definition of export of goods? Export of goods means taking goods to a place outside India. इंडिया के बाहर गुड्स को लेके जाना, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मीन्स सच अ ट्रांजेक्शन विच सेटिस्फाइज फाइव क्राइटेरियाज. ओके. सबसे पहला, सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया, रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया. ठीक है. फॉरेन करेंसी में या तो फिर आरबीआई ने जो करेंसी परमिट किया है उसमें आपको पैसे मिलने चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी द मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. इफ दिस फाइव कंडीशंस आर फुलफिल्ड, द ट्रांजेक्शन वुड बी रिगार्डेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज and refund of unutilized input tax credit would be allowed. Okay. Third one is supplies to SEZ. Supplies to SEZ. Okay. ये तीन ट्रांजेक्शन्स है. अब एक्सपोर्ट करने के लिए या तो फिर सप्लाइज टू एसईजेड करने के लिए देर आर टू मोड्स. दो तरीके हैं. सबसे पहला तरीका, यू आर हैविंग एलयूटी और यू आर नॉट हैविंग एलयूटी. ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलयूटी? LUT means letter of undertaking. Letter of undertaking means you are signing a bond with a government that you are going to export these goods from 3 months, from expiry of 15 days, after 3 months from date of invoice. ठीक है. अगर समझो आपने इनवॉइस बनाया. ओके. इनवॉइस बनाने के इस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन कर लोगे. आपने ये LUT में अंडरटेकिंग दिया. अगर आप नहीं करते हो तो आपको उस ड्यूटी को पेमेंट करना होगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. दिस इज कॉल्ड एज LUT. ठीक है. एंड जब भी आप LUT के अंडर एक्सपोर्ट करते हो आपको GST पेमेंट नहीं करना है. ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं दोनों सिनेरियोस का. सपोजिंगली यू आर मिस्टर ए. ठीक है. आप मिस्टर ए हो. क्लियर है. नाउ दिस इज इंडिया. इधर तक लेफ्ट हैंड साइड में इंडिया है. एंड बी इज योर रिसिपिएंट दैट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. क्लियर. Now you are purchasing goods from indigenous that is localites. यहाँ पर आपने परचेजेस किया है. इनका नाम रखते हैं अपन ABC कंपनी. ठीक है. यह परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ABC कंपनी. ओके. आपने ABC से कुछ गुड्स परचेज किया, आपने मैन्युफैक्चर किया. आपके प्रोडक्ट का नाम हम रखते हैं XYZ. प्रोडक्ट XYZ. ओके. नाउ यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट XYZ is going to be exported to Mr. B. क्लियर है. ओके. अभी ये एक्सपोर्ट करने के लिए दो तरीके हैं. सबसे पहला तरीका मैंने आपको बोला, आपको LUT लेना है. ठीक है. LUT अगर आपने लिया है, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर GST पे करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, योर इनवॉइस वैल्यू इज रुपीज़ 10 lakhs. योर इनवॉइस वैल्यू इज रुपीज़ 10 lakhs. ओके. सो यू कैन एक्सपोर्ट दिस गुड्स एट रुपीज़ 10 lakhs. वाई? बिकॉज दिस इज अ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन एंड इट इज़ अ जीरो रेटेड सप्लाई. ओके. सो इसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगेगा. ठीक है. और जो भी आपने टैक्सेस का पेमेंट वाइल मेकिंग परचेज किया हुआ है ABC को, दिस अमाउंट ऑफ द टैक्सेस दैट इज इनपुट टैक्स विच वुड बी अनयूटिलाइज्ड. अनयूटिलाइज कैसे रहेगा? आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. कितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगा बताओ मेरे को? 10 लाख पे जीरो. 10 लाख पे 0%. क्लियर है. क्योंकि दिस इज अ जीरो रेटेड ट्रांजेक्शन. आपको कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगा. क्लियर है. हाउएवर योर इनपुट टैक्स क्रेडिट वुड बी समथिंग. ठीक है. ITC तो रहेगा कुछ ना कुछ. सपोजिंगली आपने 5 लाख का परचेस किया था. क्लियर है. 18% का GST रेट था. सो हाउ मच वुड बी योर इनपुट टैक्स क्रेडिट? 90,000 रुपीज़. क्लियर है. सो दिस इज अ केस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ITC. ठीक है. अनयूटिलाइज्ड ITC आपका बढ़ते जा रहा है. आप एक्सपोर्ट ही करने वाले हो, आप सिर्फ एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन में ही डील करते हो. ठीक है. आपका ITC बढ़ते जाएगा. सो गवर्नमेंट इज टेलिंग कि आप इस इनपुट टैक्स रेट का रिफंड क्लेम कर लो. ठीक है. सो ये जो ट्रांजैक्शन था हमने किस में सीखा? अंडर LUT. अगर LUT है आपके पास, ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग LUT, यू विल बी गेटिंग द रिफंड क्लेम ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. समझ में आई बात? इफ़ यू आर हैविंग LUT, यू विल बी गेटिंग द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. क्लियर है. However, let us take one transaction wherein you are not having LUT. ठीक है.
तो यहाँ पर हम सिनेरियो लेते हैं नो एलयूटी, सेम ट्रांजैक्शन। ओके, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आप हो ए, और यहाँ पर ए बी सी कंपनी है, ठीक है। आपने इससे गुड्स परचेस किया है 5 लाख का एट द रेट ऑफ 18%, क्लियर। तो टोटल टैक्स वुड बी ₹90,000, क्लियर हुआ बात, ठीक है। नाउ यू आर नॉट हैविंग एलयूटी, आप इसको ना 10 lakhs में बेचते हो, ध्यान देना। यू आर सेलिंग दिस गुड्स एट ₹10 lakhs, क्लियर है। नाउ गवर्नमेंट सेज सिंस यू आर नॉट हैविंग एलयूटी you have to pay GST on this ₹10 lakhs. Okay, but one important point, this GST shall not be collected from B. Okay, आपको रिफंड तभी मिलेगा जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज नॉट पास्ड, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। सो you have to collect ₹10 lakhs from B, but you have to pay GST of ₹1,80,000, that is 18% of this 10 lakhs from your own pocket, ठीक है। यू कैन पे इट थ्रू योर ITC, कोई बात नहीं है, क्लियर। सो जो 1,80,000 है वो आपको GST गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा विदाउट कलेक्टिंग फ्रॉम द रिसिपिएंट। ओके, एंड जैसे ही आप उस 1,80,000 को पे करोगे एंड आपका GSTR1 फाइल करोगे अलॉन्ग विद GSTR3B, so the details of these exports, that is shipping bill number, port code and invoice number, invoice value, all these are filled in table number 6A, table number 6A of GSTR1। ओके, एंड इस टेबल नंबर 1 के थ्रू आइस गेट में डिटेल्स जाता है, दैट इज अपना पोर्टल है कस्टम्स का, EDI पोर्टल। सो वहाँ से आपको रिफंड क्लेम डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कितना आएगा? ₹1,80,000। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस आर द टू मेथोडोलॉजीज फॉर एक्सपोर्टिंग द गुड्स। ओके, अब फर्स्ट केस जो हमने देखा था दैट इज विथ LUT, इसमें कंप्लायंसेस क्या है? सबसे पहले आपको LUT निकालना है। ओके, LUT विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर, LUT इज वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो हर साल आपको LUT को रिन्यू करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज जितना भी आप रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज अनयूटिलाइज ITC का रिफंड क्लेम करोगे, वैसे वैसे आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एक डेबिट एंट्री पास करना पड़ेगा। डेबिट एंट्री मतलब उतना आपने रिफंड क्लेम किया तो अभी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यूटिलाइज नहीं कर सकते मीन्स आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस कम करना पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस कम तब होता है जब आप उसमें एक डेबिट एंट्री पास करते हो। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, हाउएवर इन द सेकंड केस, दैट इज नो LUT वाला केस, in this case you are not required to pass any debit entry in electronic credit ledger। I hope this is clear। क्योंकि आपको जो सेकंड केस में रिफंड मिलता है वो आप GST जो पे कर रहे हो उसी का रिफंड मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। सो बेनिफिट इज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास अ डेबिट एंट्री इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। So these were the two kinds of transaction. Now we will understand the third transaction, that is supplies made to SEZ। Okay, supplies made to SEZ, supplies to SEZ। So three transactions which are regarded as zero rated, which are those export of goods, export of services and supplies to SEZ। इन जीरो रेटेड ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए आपके पास LUT होना चाहिए, तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर LUT नहीं है तो कोई, अगर LUT है तो टैक्स पे नहीं करना आउटवर्ड पर, ठीक है। एंड LUT नहीं है तो आपको टैक्स पेमेंट करना एंड देन आपको रिफंड मिलेगा। सिमिलरली सप्लाइज टू SEZ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन स्टेट। ओके, ये एक स्टेट है अजम्पशन। ये वाला जो एरिया है राइट साइड का, दिस इज अ SEZ एरिया। ओके, यहाँ पर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के सप्लायर्स हैं, DTA। अब जैसे ही ये DTA वाले सप्लायर्स SEZ में गुड्स का सेल करेंगे, दे शुड हैव LUT। समझ में आ रही है बात? इनके पास LUT होना चाहिए। अगर LUT नहीं है तो इनको फिर भी रिफंड क्लेम मिलेगा। हाउएवर दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम SEZ। जैसे मान लो इस DTA ने 10,000 का गुड्स बेचा, ओके, पर इनवॉइस कितने का बनेगा? 1180, इधर GST होएगा, सॉरी 1800, 1800, ओके, 11,800। हाउएवर SEZ विल बी पेइंग टू DTA हाउ मच? कितना पे करेगा? ओनली ₹10,000। ओके,
दिस 1800 हैज़ टू बी पेड बाय DTA फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, ठीक है, उसको खुद को पे करना है बाय पेइंग कैश और बाय यूटिलाइजिंग ITC, जैसे भी उसको करना है, एंड इस DTA को देन 1800 का रिफंड मिलेगा। क्लियर है? However, if SEZ is paying 11,800, then SEZ is not eligible to file refund claim for this 1,800. Why? Because government ने जब specifically बोला है supplies to SEZ is a zero rated transaction, it means SEZ is not required to pay any single penny to its supplier. I hope this is clear. अगर उसने GST कंपोनेंट का पेमेंट किया है अपने सप्लायर्स को, तो SEZ के लिए ये कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब तक लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें 1800 का रिफंड SEZ को दिया जाए। क्लियर है? सो SEZ कैन क्लेम रिफंड, बट ये बहुत लिटिगेटिव मैटर है, अनजस्ट एनरिचमेंट के बेसिस पे अगर क्लेम कर पाए तो कर पाए इन फ्यूचर, बट एज फार एज द लॉ एट दिस मोमेंट इज कंसर्न्ड, देर इज नो पोजिशन इन लॉ फॉर SEZ टू क्लेम रिफंड ऑफ 1800। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर भी दो था, LUT एंड नो LUT, दो केसेस है, दोनों एकदम सिमिलर लाइंस पर चलेगा वो। क्लियर है? LUT है तो आपको रिन्यू करना पड़ेगा एवरी ईयर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में DTA को डेबिट भी करना पड़ेगा। LUT नहीं है तो उसको सेल करना है, 1800 का टैक्स पेमेंट करना है गवर्नमेंट को विदाउट कलेक्टिंग फ्रॉम द रिसिपिएंट। ओके, अगर रिसिपिएंट से कलेक्ट करता है तो DTA कैन नॉट क्लेम रिफंड। वाई? बिकॉज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड ऑन टू द रिसिपिएंट। क्लियर है? GST में अगर इंसिडेंस आप किसी पर पास ऑन करते हो तो आपको रिफंड का कोई अधिकार नहीं है। क्लियर है? So these are the three cases of zero rated supplies. तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। जीरो रेटेड सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाईज टू SEZ। ठीक है, यहाँ पर बाय SEZ नहीं है। ठीक है, वेन एवर SEZ इज गोइंग टू सेल द गुड्स और सेल द सर्विसेज, दे वुड बी नॉर्मली टैक्सेबल। ओके, SEZ जब भी सेल करेगा इट वुड बी नॉट अ जीरो रेटेड सप्लाई, बट कोई पर्सन अगर SEZ को सेल करता है देन ओनली इट विल बी अ जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई में दो टाइप के रिफंड मिलेंगे आपको, दोनों में से कोई भी एक ऑब्वियसली। अगर आपके पास LUT है तो किसका रिफंड मिलना है आपको? रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स रेट, अनयूटिलाइज्ड ITC। क्लियर है? अगर आपके पास LUT नहीं है देन आपको जो रिफंड मिलेगा वो रहेगा टैक्सेस पेड, दैट इज IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और सप्लाईज टू SEZ। ठीक है, अगर LUT नहीं है तो आपको GST पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना है? विदाउट कलेक्टिंग फ्रॉम द रिसिपिएंट। आपको रिसिपिएंट से GST कलेक्ट नहीं करना है पर आपको पेमेंट करना है। यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट एंड यू हैव टू क्लेम रिफंड। ओके, अब एक ज़बरदस्त बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ दिस रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC, व्हाट डज दिस ITC मीन ओवर हियर? दिस ITC would only constitute inputs and input service, not capital goods। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कैपिटल गुड्स परचेस करते हो तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलने वाला। क्लियर है? हाउएवर इफ यू आर एक्सपोर्टिंग विद दिस, ठीक है, नो LUT वाले केस में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो जो टैक्स बन रहा है IGST, आप उसको कैपिटल गुड्स के ITC से भी सेट ऑफ करके पेमेंट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? सो दिस IGST कैन बी पेड थ्रू द ITC, और जो बैलेंस है वो कैश लेजर में आपको कैश लेजर से पेमेंट करना है। सो दिस IGST लायबिलिटी कैन बी पेड ऑफ थ्रू ITC ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, समझ में? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। So here we complete the scenarios of this first part, that is zero rated supplies. Now let us move on to the charts to understand different types of scenarios for refund. Okay, फर्स्ट वन तो यहाँ पर अपना क्लियर है, टैक्सेस पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू SEZ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स इज ऑल्सो अ जीरो रेटेड सप्लाई। अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो भी वो जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ITC रिवर्स करना है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट गुड्स एंड जीरो रेटेड। जीरो रेटेड सप्लाई इज अ टैक्सेबल सप्लाई, वेयर एज एग्जेम्प्ट गुड्स इज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्लियर है?
However, if exempt goods are exported, then it will be treated as zero rated supply. A very important point, once again I am telling you, export of exempted goods is a zero rated supply. एंड इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, यहाँ पर अगर एलयूटी नहीं भी होगी, ध्यान देना, एलयूटी नहीं भी होगी तो भी आपको टैक्सेस का पेमेंट नहीं करना है ऑन दिस एग्जेम्प्टेड गुड्स। ठीक है, एक सर्कुलर है, चीज़ें क्लैरिफाई की गई है। ओके, नेक्स्ट वन, अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अदर देन कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, जीरो रेट सप्लाईज हो गया अपना। नेक्स्ट इज इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो अपना जीरो रेटेड का पार्ट हो चुका था। नाउ वी आर कमिंग टू इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। नाउ कमिंग टू द व्हाइट बोर्ड वंस अगेन। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, क्या बोला मैंने? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। रिफंड कितना मिलेगा, क्या कंप्यूटेशन का फॉर्मेट है, ये सारा चीज़ें हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ वेट पेशेंटली। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मीन्स द ट्रांजैक्शन वेरिन rate of tax on inputs is higher than rate of tax on output। ठीक है, यू आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल राइटिंग पैड्स। ओके, जो एग्जाम में पैड होते हैं ना, वो आप मैन्युफैक्चर करते हो, क्लियर है? फॉर यू द इनपुट्स आर कार्डबोर्ड, ओके, प्लास्टिक, क्लिप, दिस थ्री आर द इनपुट्स। कार्डबोर्ड के ऊपर परचेज का रेट है 28%, प्लास्टिक के ऊपर परचेज का रेट है 18% एंड क्लिप के ऊपर परचेज का रेट है 12%। बोलेंगे दिस इज द केस। एंड नाउ कम्स योर आउटपुट। अब यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या है? पैड। व्हाट इज आवर आउटपुट? पैड, क्लियर है? नाउ सपोजिंगली द टैक्स रेट ऑन दिस पैड is supposingly 5%, clear है? 5% is the output tax rate. So whatever GST I am going to charge to my recipient is 5%. However, when I am purchasing these goods for manufacturing this output, okay, at that time I have to pay some higher amount of taxes at higher rates, clear है? So in this case my electronic credit ledger will be accumulated with this ITC, clear? So the government will be giving you the refund of unutilized input tax credit in case of inverted duty structure, clear है? If the rate of tax on inputs is higher than rate of tax of outputs, then you can claim a refund of input tax credit, okay, as per some formula which we are going to learn in rule 89.5, clear? Okay, at that time we will be learning some important points in this regard. Coming back to the charts once again. Okay, so zero rated supplies without payment of GST against LUT with rule 96A other than where goods are subjected to export duty. Okay, so if export duty is charged on your goods, then you cannot claim refund of unutilized input tax credit. Okay, there are only few products on which export duty is charged. So if your product is such that on which export duty is going to be paid, in that case you are not eligible to file a refund claim for this unutilized input tax credit. I hope this is clear. Okay, or where the supplier avails drawback of CGST or claims refund of IGST paid on such supplies, clear है? So in these two cases refund of unutilized ITC would not be available. Rest all cases, that is 99% of the cases, you can claim refund of unutilized input tax credit. Inverted duty structure is over. Okay, other than nil rated or fully exempted. Okay, so this is very simple. If you are purchasing exempted supply but you are manufacturing taxable supplies, it doesn't mean that you are in the inverted duty structure. Okay, अगर आप purchase करते हो taxable goods 18% पर and you are selling exempted goods मतलब 0%. Okay, so in this case this transaction is not called as inverted duty structure. यहाँ पर clearly exception में carve out कर दिया है, that is अगर आप nil rated supply करते हो या फिर fully exempted supplies करते हो by purchasing taxable goods or services, then you will not be treated as inverted duty structure supplier, clear है? Okay, now from point number 3 our second part would begin, that is other cases, that are refund voucher. Okay,
For example, you have received the advances from your recipient, okay, for supply of services, but by any chance this supplies did not take place. क्लियर है, ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो आपको जो एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ा उसका रिफंड आपको मिलना मिलना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि आप अपने रिसिपिएंट को वापस से जीएसटी पे पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कर दोगे जितना उसने आपको दिया हुआ है। सो द रिफंड ऑफ द taxes paid on advance on which supplies are not provided will be available as refund, and the document for that would be receipt voucher and refund voucher. Clear है, whenever I am refunding to a recipient, at that time I have to issue refund voucher. We have seen this in the documentation chapter. Clear. Next is refund of a wrong tax paid. Okay, for example, I have considered one transaction as a intrastate supplies. ठीक है, मैंने CGST SGST पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को. However, this transaction was held as interstate transaction on that IGST was to be levied. So अब मुझे IGST पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. ओके, एंड जो CGST SGST मैंने पे किया है पीछे गवर्नमेंट को, उसका मेरे को रिफंड मिलेगा अंडर दिस सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 क्लॉज डी. क्लियर है, ओके. अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या इंटरेस्ट लगेगा लेट पेमेंट पर. आंसर इज नो, इंटरेस्ट नहीं लगेगा. क्लियर है, एज पर सेक्शन 77 read with section 77 of CGST Act read with section 19 of IGST Act. Clear. Next is refund to casual taxable person and non-resident taxable person. अब NRTP है, उनको एडवांस टैक्सेस पेमेंट करना पड़ता है. क्लियर है, अब एडवांस में उन लोगों ने टैक्स पेमेंट किया पर फाइनल लायबिलिटी उस एडवांस टैक्स से कम आया, तो जो बचा हुआ अमाउंट है इट विल बी रिफंडेड टू CTP और NRTP. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, हाउएवर दिस रिफंड वुड बी सब्जेक्टेड टू फाइलिंग ऑफ ऑल रिटर्न्स. ठीक है, जब तक आप सब रिटर्न फाइल नहीं करोगे आपको रिफंड नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज डीम्ड एक्सपोर्ट, a very important transaction, deemed export. Let us come in the chart, sorry, let us come in the whiteboard and understand this transaction. Now what is the meaning of deemed exports? So as per notification number 48, government has regarded only 4 transactions to be a deemed export transaction. Okay, so we can see those 4 transactions in the chart, and then we will come to understand the refund procedure on the whiteboard. Okay. Supply of goods by registered person against advance authorization. Okay, मतलब हम किसी पर्सन को दे रहे हैं गुड्स, ठीक है, अगेंस्ट एडवांस ऑथोराइजेशन. मेरे पास एडवांस ऑथोराइजेशन है, मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है, एंड मैं किसी ऐसे पर्सन को गुड्स दे रहा हूँ जिसके पास एडवांस ऑथोराइजेशन है. क्लियर. सो इस सप्लाई ऑफ गुड्स को हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे. नेक्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय अ पर्सन, बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट EPCG. ठीक है, सो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स इज अ स्कीम ऑफ FTP, जिसमें कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी कस्टम ड्यूटीज आप लोग पेमेंट करते हो उसका आपको एग्जेम्पशन मिलता है, प्रोवाइडेड यू प्रोवाइड अ मिनिमम वैल्यू एडिशन ऑफ 6 टाइम्स. वो सब हम FTP में देखते हैं. क्लियर है. So supply of capital goods by a registered person against EPCG scheme. Next one is supply of goods by a registered person to export oriented unit. अगर आप किसी EOU को सप्लाई करते हो, ठीक है, EOU मीन्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जिसका काम ही है एक्सपोर्ट करना. क्लियर है. सो मतलब आप ऐसे पर्सन को सप्लाई कर रहे हो जो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट करने वाला है. ओके, तो जो आप उसको सेल करते हो इट विल बी कॉल्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज EOU के बाद EHTP, then software technology park and biotechnology park unit. Next is supply of gold by bank or PSU against advance authorization. Clear. So these 4 transactions are regarded as deemed export. So let us take one example and understand the procedure. Now supposingly this is a EOU unit, यहाँ पर ये EOU unit है. Clear है. Now there is one DTA unit who is going to sell these goods to EOU. Okay. अब यहाँ पर ना सिर्फ गुड्स ही कवर किया है, ध्यान देना, सर्विस यहाँ पर कवर नहीं किया है, ओनली गुड्स हैव बीन कवर्ड. ओके, सो इफ यू आर गिविंग सर्विसेज टू EOU इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट. ओनली ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स वुड बी कॉल्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट. क्लियर है.
So whenever DTA is selling goods to EOU, it would be called as deemed exports. अब deemed export में कौन रिफंड क्लेम कर सकता है? ठीक है, या तो सप्लायर कर सकता है या तो रिसिपिएंट कर सकता है, सप्लायर और रिसिपिएंट. First thing which you should note down here is this transaction is not a zero rated supply. ये ट्रांजैक्शन जीरो रेटेड सप्लाई है ही नहीं. क्यों? जीरो रेटेड सप्लाईज आर डिफाइंड इन सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट, जो हमने सीखा ऑलरेडी. तीन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाईज टू SEZ. दिस ट्रांजैक्शन इज नन ऑफ दोज थ्री. क्लियर है? इन तीनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है ये. तो दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट अ जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब दिस ट्रांजैक्शन इज अ टैक्सेबल सप्लाई. ठीक है, इसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना है. हाउएवर रिफंड इज एलिजिबल. क्लियर है? अब रिफंड किसको किसको मिलने वाला है? या तो सप्लायर को या तो रिसिपिएंट को. क्लियर है? सो लेट अस अंडरस्टैंड द केस वेयर सप्लायर इज गोइंग टू क्लेम रिफंड. So supposingly if the value of goods is rupees 10,000, okay, and GST is 18%, so total comes to around 11,800. Okay, so the DTA unit, if supplier is going to claim refund, in this case this DTA supplier will not be collecting this 18% tax from EOU. Clear? EOU will be only going to pay 10,000 rupees to DTA. However, DTA will be paying to government this 1800, that is GST component, from his own pocket, and then he will be claiming refund of this 1800. Along with that, he has to submit an undertaking from EOU that he will not be taking ITC. Clear? उसको एक रिसिपिएंट से अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा कि आप उसका क्रेडिट अवेल नहीं करोगे. इफ दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ओके, फर्स्ट वन इज इंसिडेंस शुड नॉट पास ऑन. क्लियर है? ये तो IDT का रूल है. If incidence is passed on, then refund cannot be claimed. So DTA supplier has to collect only 10,000 rupees from EOU. Okay, तो 1800 rupees जो है वो collect नहीं करेगा DTA EOU से, and this 1800 will be paid by DTA to the government by utilizing ITC or from his electronic cash ledger, whatever the case may be. And along with that, he has to submit an undertaking to the effect that recipient is not गोइंग टू क्लेम द रिफंड. ओके, तो ये दोनों कंडीशन पे सप्लायर को इस 1800 का रिफंड मिलेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज जब रिसिपिएंट को रिफंड कब मिलेगा. ठीक है, रिसिपिएंट का क्या काम है बताओ मेरे को. रिसिपिएंट्स वर्क इज टू एक्सपोर्ट गुड्स. ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. तो दिस इज द पर्सन हु इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन जीरो रेटेड सप्लाईज. क्लियर है? So if supplier is charging him 18% and this recipient is paying 11,800, ठीक है, तो जो 1800 का जो क्रेडिट है, ठीक है, it will be unutilized. Okay, why? Because outward is zero rated, however input पे हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं. So this 1800 will be available as a refund to recipient. Okay, why? Because this person is engaged in zero rated supplies of goods. I hope this is very clear now. Okay, समझ में? So supplier can claim refund or recipient can claim refund. Recipient will be claiming refund on the basis of zero rated supplies. ठीक है, वो zero rated supply कर रहा है इसीलिए उसको refund of unutilized ITC मिल जाएगा. However, if supplier is claiming refund, he will be claiming refund of taxes paid on this transaction. Okay, without collecting from the recipient. Why? Because incidence should not pass on. I hope this is clear. Now coming back to the charts. Okay, deemed export का cases clear है. Next is refund of balance in electronic cash ledger. अगर आपके पास कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो. नेक्स्ट इज IGST पेड बाय टूरिस्ट लिविंग इंडिया. ओके, नेक्स्ट इज टैक्स becoming refundable on consequences of any judgment, order, direction of appellate authority or tribunal और कोर्ट. अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस पे आपको रिफंड मिलने वाला है तो भी आपको रिफंड क्लेम कर सकते हो. नेक्स्ट इज ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट. ओके, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर ऑफ असेसमेंट एंड ऑडिट विच इज आवर नेक्स्ट चैप्टर. तो अगर प्रोविजनल असेसमेंट फाइनलाइज होता है एंड आपने जितना प्रोविजनली पे किया वो ज़्यादा पे किया था एज कम्पेयर टू फाइनल टैक्स लायबिलिटी,
तो जो एक्सेस अमाउंट आपको है वो रिफंड होगा, ठीक है, आपको एक क्लेम सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन परचेज मेड बाय यूएन बॉडीज और फॉरेन एम्बेसीज, ठीक है। जो यूएन बॉडीज है या एम्बेसीज है वो लोग भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं ऑन द टैक्सेस पेड बाय देम ऑन इंडिजीनियस परचेजेस, ओके। अब उनको रिफंड क्लेम वंस इन एवरी क्वार्टर करना है, हर क्वार्टर में एक रिफंड क्लेम करना, बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, क्लियर है, ओके। सो हियर वी कंप्लीटेड विद द सर्कमस्टेंसेस इन विच रिफंड इज अवेलेबल, ओके। अब रिफंड आपको मिलना है ये बात तो तय है, ओके, बट रिफंड क्लेम करने के लिए आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा, क्लियर है। सो फॉर अप्लाइंग द रिफंड क्लेम द टाइम लिमिट इज 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। क्या टाइम लिमिट है? 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट, ओके, 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंट डेट? 2 साल कब से गिना जाएगा? फर्स्ट वन, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप करते हो तो आपको अगर पैसा किस दिन मिल रहा है, पैसा मिलने वाला दिन, या तो फिर जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, विच एवर इज लेटर, ओके, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज लेटर will be the date from where 2 years would be counted, okay. Next is export of goods by sea or by air। अगर आपके गुड्स वेसल से या तो एयरक्राफ्ट से जाते हैं तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के डेट से 2 साल काउंट किया जाएगा, ठीक है। मीन्स लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के 2 साल में आपको रिफंड के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल में रिफंड का एप्लीकेशन नहीं करते हो देन योर रिफंड इज लैप्स्ड। Next one is export of goods by land. If it is by vehicle, then when the goods are crossing the custom frontier, from that time uh, you have to count 2 years. Next is export of goods by post, date of dispatch. Refund on account of inverted duty structure। जो हमने पैड का एग्जांपल लिया उस केस में आपको जो ड्यू डेट होगी आपकी रिटर्न फाइलिंग की, ठीक है, सेक्शन 39 वाली, दैट इज GSTR 3B वगैरह, सो उसकी ड्यू डेट से 2 साल में आपको रिफंड क्लेम करना है। डीम्ड एक्सपोर्ट, जो दिन आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी उधर से 2 years। फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है, तो डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, जो दिन आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हुआ है उस दिन से 2 years में आपको रिफंड क्लेम करना है। रिफंड क्लेम बैक CTP और NRTP, इसमें जो दिन उन्होंने पेमेंट ऑफ टैक्स किया दैट इज डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, बट रिफंड टू बी क्लेम्ड इन द लास्ट रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय CTP NRTP। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, date of payment of tax is a relevant date, okay, relevant date is date of payment of tax, however the refund claim should be made in the final return, that is last return, which is to be filed by CTP or NRTP, okay, I hope this is clear। Next is UIN holder or recipient claiming refund for deemed export, date of receipt of goods or services by such person or UIN holder, clear hai? Okay, so here we complete with the time limit to apply for a refund, 2 years from relevant date, and we have completed with the relevant date provision, clear, okay। Now very important concept, the majority of the questions in your exams would be based on this part, that is part number 3, how to compute amount of refund under various scenarios, okay। Let us come to the whiteboard and understand the relevance of this chapter, this part। Refund computation, okay, 89.4, rule 89.4, okay, it is a rule 89.4। Now this is for unutilized ITC in case of zero rated supplies of goods or services under LUT, ठीक है। ये किसके लिए कंपटीशन अपन कर रहे हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर LUT, ठीक है। अगर आपके पास LUT नहीं है तो आपको स्ट्रेट अवे जो आउटपुट पे टैक्स बनता है उसका रिफंड मिलने वाला है, क्लियर है। हाउएवर अगर आपके पास LUT है तो आपको ITC का रिफंड मिलेगा, क्लियर, ITC का रिफंड मिलेगा, एंड एज पर दिस फॉर्मूला, ध्यान देना फॉर्मूला पर, नेट ITC into turnover for zero rated supplies divided by adjusted total turnover, turnover for zero rated supplies divided by adjusted total turnover, ठीक है, क्लियर है, दिस इज द फॉर्मूला। अब एक एक कंपोनेंट को हम लोग
इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। नंबरिंग दे देता हूँ 1, इसको हम बोलेंगे 2, इसमें ए और बी 2 आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए अलग, ये अलग, एंड थर्ड वन इज एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ओके, सो फर्स्ट वन इज नेट आईटीसी। नेट आईटीसी आ जाओ यहाँ पर चार्ट की ओर। ओके, नेट आईटीसी means the input tax credit on inputs and input services not on capital goods. Very important point. नेट आईटीसी जो हमने यहाँ पर देखा फॉर्मूला में, इट इज ओनली कंसिस्टिंग ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, नॉट ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कैपिटल गुड्स का आपको रिफंड नहीं मिलता है, तो इट वुड नॉट इंक्लूड कैपिटल गुड्स। ओके, अदर देन रूल 89(4)A एंड 89(4)B, क्लियर है। 89(4)A एंड 4B उसका जो भी आईटीसी होगा वो यहाँ पर आपको इंक्लूड नहीं करना है। मीनिंग देयर बाय रूल 89(4)A इज फॉर मर्चेंट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स। क्या बोला मैंने? merchant export transactions, and 89(4)B is for deemed export transactions। क्लियर है, ध्यान देना इस पर। व्हाइट बोर्ड में आते हैं, समझते हैं मर्चेंट एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट। मर्चेंट एक्सपोर्ट समझना, डीम्ड एक्सपोर्ट तो आप लोगों ने ऑलरेडी समझ ही लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी मर्चेंट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन? For example, here there is a person A, whose job is to export goods or services। Okay, export goods or exporting services, क्लियर है, इसका यही काम है। एंड यहाँ पर एक पर्सन है बी, ठीक है। अब जो गुड्स बी ए को सप्लाई करता है, ध्यान देना, वही गुड्स ए एक्सपोर्ट करता है, क्लियर है। द सेम गुड्स which will be exported by A, clear है। So in this case, since B is giving it to Mr. A, B will be charging tax of 0.1% IGST, or if A and B are in same state, then 0.05% CGST and 0.05% SGST, or it can be UTGST। तो whenever B will be supplying to A, ठीक है, जब भी B A को सप्लाई करेगा वो कम रेट पर सप्लाई करेगा, इस छोटे छोटे रेट्स पर, ठीक है। एंड देन A विल बी गोइंग टू एक्सपोर्ट दिस गुड्स और सर्विसेज, क्लियर है। सो जो भी ये क्लेम है दैट इज रिफंड क्लेम, जो 89(4)A में क्लेम करना होगा इसको, क्लियर है क्या? 89(4)A। so as per 89(4)A this refund claim will be eligible to Mr. A। okay, so in this case net ITC will not be including this part of ITC। why? because इसका रिफंड आपको अलग से मिलने वाला है, क्लियर है। so यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट आप लोग के दिमाग से ऑलमोस्ट स्किप हो जाता है, ठीक है। many a times students skip this point, very important point। whenever B is selling goods to A at this concessional rates, ठीक है, ये concessional rate पर जब सप्लाई कर रहा है, then A is bound to export these goods under LUT only। ध्यान देना, under LUT ही होना चाहिए, क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। if A is not having LUT, then B has to levy the tax the normal rate, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस सप्लाईज पर 18% था तो 18% लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो द जॉब ऑफ B is that first check whether A is having LUT or not। if A is not having LUT, then he has to apply the tax rate on the respective goods or services। okay, if A is having LUT, then only B can supply the goods or services at this concessional rate। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो काफ़ी बार मिस आउट हो जाता है, क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट्स once again। (89)(4)A and 4B are those rules which provide separate refund claim on account of deemed export and merchant export transactions respectively। okay, 89(4)A for deemed export, 89(4)B for merchant exports। ठीक है, यहाँ पर हमने मर्चेंट एक्सपोर्ट का मीनिंग समझ लिया है, ठीक है, ये पूरा हमने यहाँ पर देख लिया, क्लियर।
तो नेट आईटीसी में क्या इंक्लूड होगा, व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन नेट आईटीसी? In net ITC, inputs and input services turnover would be included, not of capital goods. Clear? Now we are coming to the part 2A, that is zero rated supply of goods. Very important point. Zero rated supply of goods. ठीक है? Turnover of zero rated supply of goods means value of zero rated supplies made during relevant period. Okay, now relevant period can be month or a quarter or a financial year. Okay, or it can overlap a financial year as well, without payment of tax under bond or LUT. अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो, दैट इज अंडर LUT करते हो, ठीक है, देन दैट इनवॉइस वैल्यू ध्यान देना, दैट इनवॉइस वैल्यू योर विल बी योर टर्नओवर फॉर जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है, ये पार्ट ए है यहाँ का. ओके, नाउ दिस इज एन अमेंडमेंट विच वॉज मेड इन अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट ऑल्सो. ठीक है, क्या अमेंडमेंट है ध्यान देना. और जो इनवॉइस वैल्यू है ये तो अपन लेंगे ही, या तो फिर 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ गुड्स. ठीक है, अगर एग्जांपल डोमेस्टिक मार्केट में इस गुड्स का रेट था 10 रुपीज़. ओके, सो वी विल टेक 1.5 टाइम्स ऑफ दैट 10, दैट इज 15 रुपीज़. क्लियर है? तो द इनवॉइस वैल्यू विच यू आर चार्जिंग टू योर रिसिपिएंट or 1.5 times of the domestic supply of these goods, whichever is lower, will be your turnover for zero rate supply of goods. A very important point. ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि 1.5 टाइम्स हम किसका ले, अगर हम सप्लाई नहीं करते डोमेस्टिक मार्केट में तो हम किसका ले. सो आंसर इज लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले लो. ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो क्या करें हम लोग. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ भी क्लैरिफिकेशन इशू नहीं किया है. सो 1.5 टाइम्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोल दिया. क्लियर? अब ये किया क्यों ऐसा? सो आंसर इज गवर्नमेंट हैज़ डन दिस टू कर्ब ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स. ठीक है, बट दिस इज टोटली अ वेस्ट मूव. ठीक है, इस मूव का कोई भी ज़रूरत नहीं था. दिस इज वेरी इरेलेवेंट प्रोविजन विच इज़ टू बी स्क्रैप्ड आउट वेरी सुन. इसको स्क्रैप आउट करना ही चाहिए बिकॉज इट इज़ डिस्करेजिंग द एक्सपोर्टर्स. ठीक है, उनका रिफंड क्लेम्स कम होते जाता है इसकी वजह से. बिकॉज इफ आई एम चार्जिंग 15,000, दैट इज हाई अमाउंट फॉर माई एक्सपोर्ट्स. ओके, एंड डोमेस्टिकली दिस गुड्स आर ट्रेडेड एट ₹2,000. ओके, डोमेस्टिकली 2,000 में, तो 2,000 का 1.5 टाइम्स अगर मैं करूँ तो कितना आएगा? 3,000. So for the purpose of my turnover for zero rate supply of goods, only 3,000 would be considered. So it is very much hardship for exporter of goods. Clear है क्या? बट गवर्नमेंट को इसमें प्रॉब्लम ही क्या होनी चाहिए? जब मैं $15,000 या 15,000 रुपीज़ बाहर से इंडिया में लेकर आऊँगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, सो हियर दिस प्रोविजन इज नॉट in the favor of, we can say, taxpayers. Okay, exporters. So these are going to surely discourage the exports here. Other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under 89(4)(a) or 4(b). ठीक है, if you are claiming refund on account of deemed export or merchant export transaction, then that turnover would be excluded from this supply of goods. Okay, clear? Because you are going to claim refund under some another provisions. तो यहाँ पर 89(4) में उसका रिफंड क्लेम नहीं होगा. 89(4)(a) 4(b) विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट. ठीक है, सो 89(4) में आपको ये टर्नओवर को एक्सक्लूड करना है. नेट आईटीसी में हमने उसका आईटीसी एक्सक्लूड किया, टर्नओवर ऑफ गुड्स में हम इसका टर्नओवर भी एक्सक्लूड कर देंगे. क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमने देखा टर्नओवर फॉर जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स. अब क्या सप्लाई ऑफ गुड्स में, ध्यान देना, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स दैट इज जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स में कंसिडरेशन लाने का कंडीशन है? आंसर इज यस है. दैट इज इंसर्टेड बाय रूल 96B. Rule 96B, which says that you have to receive consideration within the timelines as described by FEMA. ठीक है, FEMA में जो भी टाइमलाइंस है उसके अंडर आपको पैसा आना चाहिए फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. क्लियर है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए तो पहले से ही टर्नओवर मतलब ही कंसिडरेशन है. ओके, पर गुड्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था पहले. तो फॉर गुड्स नाउ अ न्यू रूल, दैट इज रूल 96B, हैज बीन इंसर्टेड विच सेज दैट यू हैव टू repatriate, that is इंडिया में पैसा रियलाइज करना होगा आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विद इन द टाइम लिमिट्स एज प्रिस्क्राइब बाय FEMA. ओके, इफ यू आर नॉट realizing the amount of proceeds, then you are required to repay back
you are required to repay back the amount of refund sanctioned to you. I hope this is clear. Okay, next one, zero rated supply of services. Zero rated supply of services, very important. Services are intangible. Okay, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सो इट विल नॉट बी पासिंग थ्रू कस्टम फ्रंटियर्स, ठीक है। गुड्स का कैसा है, कस्टम्स के थ्रू जाने वाले हैं, तो अपने पास प्रूफ होता है, बट सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सो इन दिस द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट विल बी द रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन। रिपीटिंग इट वंस अगेन, the proof of export will be the receipt of consideration. I hope this is clear. Okay, so whenever you are receiving the payment, okay, whenever you are receiving the payment, the amount of payment would form part of your turnover. So payment received during the period, during the relevant period for zero rate supply of services plus pre-received consideration for previous period. Okay, for example, my period is April to June. For example, my period is April to June. So for services supplied in April to June, for which consideration have been received in April to June, it will be added in the turnover for zero rate supply of service. Next one, if I have supplied services in the quarter of Jan to March, however I am receiving the money in April to June, then also it will be added in the turnover of zero rate supply of services. Next one, what shall not be added? क्या ऐड नहीं होना चाहिए? So answer is, if you are receiving money in advance, if you are receiving money in advance for future supply, then that advance will not be forming part of your zero rated supply of services. I hope this is clear. Okay, समझ में आई बात? तो zero rated supply of service का definition is receipt of consideration itself. अगर आपने इस पीरियड में सर्विस दिया, इस पीरियड में पैसा मिला, ओके, आपका टर्नओवर है। आपने पिछले पीरियड में सर्विस दिया था, इस पीरियड में पैसा मिला, then it will be treated as supply of services. Clear है? So basically for services, the turnover will not be counted on the basis of invoices raised or invoices issued. The turnover will be counted on the basis of payments received. I hope this is clear. Okay, ठीक। Next is adjusted total turnover, that is the denominator part. That is the denominator part. Okay, so adjusted total turnover means what? Taxable supplies of goods or services within India. सारे टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट की बात नहीं चल रही है, सारे टैक्सेबल सप्लाईज आपको ऐड करने हैं, ठीक है। सारे टैक्सेबल सप्लाईज आपको ऐड करने हैं, एक्सक्लूडिंग इनवर्ड आरसीएम, ये तो कॉमन हो चुका है अब, एक्सक्लूडिंग इनवर्ड आरसीएम ये आपको ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, इट मीन्स जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। अब आपके दिमाग में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। Invoice value or 1.5 times of domestic goods, whichever is lower, was considered for the purpose of our numerator, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमको क्या कंसिडर करना है, इनवॉइस वैल्यू या फिर सेम व्हाट वी हैव कंसिडर्ड अबव? आंसर इज व्हाट यू हैव कंसिडर्ड अबव विल बी कंसिडर्ड इन योर डिनोमिनेटर। दिस इज क्लियर। ओके, अगर आपका 1.5 टाइम्स वाज लोअर इन योर न्यूमरेटर, so that lower amount, that is 1.5 times value, will be considered in your denominator as well. ओके, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी हायर इनवॉइस वैल्यू। अगर हायर इनवॉइस वैल्यू अपन ने डिनोमिनेटर में पकड़ा तो आपका रिफंड क्लेम और भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट विल रिड्यूस अवर रिफंड क्लेम टू अ मेजर एक्सटेंट इफ यू आर इंक्रीजिंग योर डिनोमिनेटर एंड योर न्यूमरेटर is restricted up to 1.5 times. I hope this is clear now. Okay, next is zero rated supply of services. Whatever we have learned as turnover for zero rated supply of services, same would be replicated at डिनोमिनेटर। क्लियर है? सो टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये तीनों चीज़ों को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्सक्लूड क्या करना है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जेम्प्ट सप्लाईज आपको एक्सक्लूड करना है, बाहर रखना है। क्लियर है? एग्जेम्प्ट सप्लाईज आर नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। क्लियर? एग्जेम्प्ट सप्लाईज विल बी apart from the adjusted total turnover. Next is CGST, SGST, UT, GST, cess. So GST component will not be included in your turnover. Next is turnover for Rule 89 4A and 4B, ठीक है। Rule 89 4A 4B का हमको रिफंड क्लेम अलग से मिलने वाला है। नेट ITC से हटा दिया, टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हटा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोगों को एडजस्टेड
टोटल टर्नओवर से भी हटाना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज रिलेवेंट पीरियड। रिलेवेंट पीरियड क्या हो सकता है? रिलेवेंट पीरियड कैन बी एनीथिंग, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, जो भी आप बोलो उसको सबको हम रिलेवेंट पीरियड ही बोलेंगे, ठीक है। इवन इफ फाइनेंशियल ईयर को ओवरलैप करता हो तो भी उसको हम रिलेवेंट पीरियड बोल सकते हैं। क्लियर है? Whenever a person claims or applies for refund, he shall debit the corresponding amount in the electronic credit ledger. Okay. Further, if refund is rejected, अगर गवर्नमेंट ने रिफंड रिजेक्ट किया, मैंने क्लेम किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को क्या किया था? डेबिट किया था। ओके, बट रिफंड मेरा जैसे ही रिजेक्ट होता है, इट शैल बी recredited to the electronic credit ledger if I am not going to file appeal for it। अगर अपील फाइल करना है एंड अपील डिस्पोज हो जाता है, अपील में भी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, एंड इफ आई एम नॉट गोइंग टू हायर अपीलेट अथॉरिटी, देन इट विल बी recredited to the electronic credit ledger। I hope this is clear now। Okay, so here we complete with the refund on account of zero rated supplies under LUT here। Now coming to the inverted duty structure refund। Okay, inverted duty structure refund। So in case of inverted duty structure which is contained in rule 89(5), 89(5) में लिखा हुआ है ये maximum amount of refund claim, turnover of inverted rate of supplies of goods or services, ठीक है। ऐसे सप्लाईज जिनके ऊपर आपका परचेज रेट कम है एंड परचेज रेट ज़्यादा है एंड सेल रेट कम है, ठीक है। आउटपुट के ऊपर का GST इज लेस एंड परचेज के ऊपर का GST इज हाई, so the turnover of those inverted supplies will be your numerator। I hope this is clear। Okay, divided by adjusted total turnover into net ITC, ठीक है। net ITC जो है it will be only of inputs, only and only inputs। clear? It will not be constituting input services or capital goods। very important point। एग्जाम में अगर आपको इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है, देन ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू ऐड इन द नेट ITC व्हेन यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आपको खास ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स ही कंसिडर हो रहे हो। क्लियर है? ओके, माइनस टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप लोग ऑब्वियसली भले ही कम रेट ऑफ टैक्स है पर आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, तो जितना आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो वो यहाँ पर आपको माइनस करना है, जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा दैट विल बी रिफंडेड टू यू। क्लियर है? लेट अस डिकोड द टर्म्स। नेट ITC वी हैव ऑलरेडी सीन, सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स। नेक्स्ट वन इज अदर देन, ये तो हो गया अपना 89(4)(A)(4) भी, यहाँ पर भी आपको आप लोग को एक्सक्लूड करना है। नेक्स्ट इज एडजस्टेड टोटल टर्नओवर एंड रिलेवेंट पीरियड डेफिनेशन विल बी सेम एज डिस्कस्ड अर्लियर। जो भी हमने पहले सीखा वही यहाँ पर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का डेफिनेशन रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज मर्चेंट एक्सपोर्ट्स क्लेम रिफंड अंडर रूल 89(5)। जो भी मर्चेंट एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो लोग जो परचेस करते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर यहाँ पर देखो, अभी चार्ट में अपना व्हाइट बोर्ड पर आ जाओ। अब जो बी है अपने केस में, ठीक है, बी ने भी गुड्स को परचेस किया रहेगा, ध्यान देना, बी ने भी गुड्स को परचेस किया रहेगा। समझ में आ रहा है? बी हैज़ परचेस द गुड्स फ्रॉम एग्जाम्पल सी। ओके, अब इसने जो परचेस किया है, एग्जाम्पल इट हैज़ परचेस एट 18%, तो इसके लिए इनपुट रेट क्या है? 18%। बट आउटपुट ये किसको सेल कर रहा है? ऐसे पर्सन को सेल कर रहा है जो एक्सपोर्ट करने वाला है। सो ही इज एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। क्लियर है? सेंट्रल टैक्स रेट, इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ये एंजॉय कर रहा है। सो इसका आउटवर्ड बहुत कम जनरेट होगा, बहुत कम है इसका आउटवर्ड, पर इसका इनपुट तो नॉर्मल है। सी को ऐसा कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सी को 18 पे ही उसको सेल करना है, ठीक है। सो बी's इनपुट विल बी हायर देन हिज आउटपुट, so accordingly B can claim refund under rule 89(5), that is under inverted duty structure। I hope this is clear now। Okay, now coming to the charts once again। Okay, when a person claims or applies for refund, same हमने जो उधर सीखा, रिफंड अगर क्लेम कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट एंट्री पास करना पड़ेगा। इफ रिफंड इज रिजेक्टेड देन recredit shall be done। Okay,
नाउ दिस इज एन अमेंडमेंट. Refund of accumulated ITC not allowed on account of reduction in GST rate as inverted duty structure. फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ गुड्स परचेज किया था 12% पर, ठीक है. अब गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है, वो बोलता है कि अब इस गुड्स के ऊपर रेट ऑफ टैक्स 5% हो गया, ठीक है. तो जब मैंने परचेस किया था 12% पर एंड अब मैं सेल करने वाला हूँ कितने पर, 5% पर. क्यों? बिकॉज द रिवाइज रेट ऑन दिस गुड्स इज 5%. ओके. सो गवर्नमेंट सेज दैट द परचेज जिसके ऊपर आपने आईटीसी 12% के ऊपर पेमेंट किया, दैट विल नॉट बी एलिजिबल टू बी क्लेम्ड अंडर दिस रूल. इट इज़ नॉट अ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया है, ठीक है. वाइड सर्कुलर नंबर 135. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंटेशन एरिया. क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेंगे? अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आप करते हो तो आपको शिपिंग बिल सबमिट करना है एंड एक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, ठीक है. एक्सेल में ये स्टेटमेंट बनता है एंड इसको यूटिलिटी के फॉर्म में अपलोड किया जाता है. स्टेटमेंट 3 बोलते हैं इसको. इस स्टेटमेंट में होता क्या है, इस स्टेटमेंट में नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस होते हैं, ठीक है. इनवॉइस नंबर, शिपिंग बिल नंबर, डेट ऑफ इनवॉइसेस, अमाउंट ऑफ इनवॉइस, ये सब होता है. नेक्स्ट वन इज इनपुट एंड इनपुट सर्विस इनवॉइस. इनपुट एंड इनपुट सर्विस इनवॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप एलयूटी के अंडर एक्सपोर्ट करते हो एंड यू आर क्लेमिंग रिफंड ऑफ योर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, देन ओनली यू हैव टू सबमिट दिस इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इनवॉइसेस. ओके, क्लियर है. अगर आप विदाउट एलयूटी एक्सपोर्ट करते हो, दैट इज ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल दिस थिंग. ये कुछ भी आपको सबमिट करना नहीं है, ठीक है. ये कुछ भी सबमिट नहीं करना. द शिपिंग बिल फाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज रिफंड एप्लीकेशन. क्लियर है. द शिपिंग बिल फाइल्ड, शिपिंग बिल जो आपने फाइल किया है, इट विल बी ट्रीटेड एज ए रिफंड एप्लीकेशन. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, आपको कुछ भी झंझट नहीं करना है. समझ में आई बात? नेक्स्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो तो आपको जो भी पैसा आ रहा है फॉरेन से, दैट इज फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, FIRC और BRC, दैट इज बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये आपको प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट करनी पड़ेंगी. सेम इनपुट इनपुट सर्विसेज सबमिट करने पड़ेंगे एंड स्टेटमेंट जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, दैट यू हैव टू सबमिट. आई होप दिस इज क्लियर नो. ओके. नेक्स्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज टू SEZ. अगर आप SEZ को सप्लाई करते हो तो आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा? स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी जो आपने इनवॉइसेस इशू किए हैं. एविडेंस सबमिट करना पड़ेगा. एंडोर्समेंट बाय स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ द जोन. एंडोर्समेंट क्या होता है? आपने जो भी सप्लाई किया है वो ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस में काम आने वाला है SEZ को, ऐसा एक एंडोर्समेंट होता है. वो एंडोर्समेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा. अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट SEZ हैज़ नॉट पेड टैक्सेस, मतलब SEZ से टैक्सेस कलेक्शन नहीं हुआ है, ये आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा. क्लियर है. नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स रिसीव्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू SEZ. अगर SEZ से आपको पैसा आ रहा है, ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देन यू हैव टू furnish the details of payments received. I hope this is clear. Next is inverted duty structure. In that case आपको परचेज इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस सबमिट करना है. एक आपको स्टेटमेंट सबमिट करना है जिसमें आपका परचेज के ऊपर के GST के रेट्स होंगे एंड आउटपुट के ऊपर के GST रेट्स होंगे. क्लियर है. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, ध्यान देना. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ. हियर द नेट ITC इज देयर, ठीक है. ये नेट ITC है. अब ये नेट ITC में सिर्फ इनपुट्स के तो आएंगे, उतना हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है. पर अब इनपुट्स में भी क्या इन्वर्टेड वाले इनपुट्स ही यहाँ पर आएंगे? आंसर इज नो. अगर नॉर्मल वाले इनपुट्स है, दैट इज अगर मैंने 5% पे परचेज किया है एंड 18% मेरा रेट है, देन ऑल्सो दैट इनपुट विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दिस नेट ITC. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. सो देर इज नो बाइफर्केशन इन नेट ITC. क्लियर है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 5% परचेज रेट, आउटवर्ड 28, येस इट विल बी इंक्लूडेड. 18 पे परचेज किया है, 12 इज आउटवर्ड आउटपुट रेट, येस इट विल बी इंक्लूडेड. 28 पे परचेज किया है, 5 पे मेरा सेलिंग है, then also it will be included. I hope this is clear. All ITC on inputs has to be included in net ITC. Clear? Documentation part is clear. Now some important notes for documentation claim. If refund claim exceeds rupees 2 lakh, अगर मेरा 2 लाख से ऊपर का refund claim exceed होता है, then I have to furnish a CA/CMS certificate in Annexure 2 of RFD 01. Clear है. अभी ये सर्टिफिकेट क्यों होता है? ये सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि आपने इंसिडेंट्स तो पास ऑन नहीं किया, ये प्रूव करता है ये सर्टिफिकेट.
नो रिफंड शैल बी क्लेम्ड इज अमाउंट ऑफ रिफंड इज लेस देन 1000. ये जो 1000 है इट विल बी अप्लाइड फॉर ईच एंड एवरी टैक्स हेड सेपरेटली. CGST 1000, SGST 1000, IGST 1000. ठीक है. अगर आपका क्लेम एनी हेड में, टोटल हेड में, दैट इज CGST का क्लेम अगर आपका 1000 से कम है तो आपको रिफंड एप्लीकेशन नहीं करना है. ठीक है. आपको रिफंड नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा. ठीक है. 1000 रुपये के लिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन, CA/CMA सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड. नॉट रिक्वायर्ड. अब कौन से केसेस में रिक्वायर नहीं रहेगा? ऐसे केसेस में जिसमें इंसिडेंस पास ऑन नहीं होता है. ठीक है. कौन से ऐसे केसेस है? रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अगर आप आपके जेब से IGST पे करते हो दैट इज़ विदाउट LUT, देन आपको रिफंड क्लेम करना है तो विदाउट CA सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हो. ठीक है. और इनपुट्स यूज्ड इन मेकिंग सच एक्सपोर्ट्स. ठीक है. अगर आप रिफंड क्लेम फॉर परचेज करते हो. ठीक है. परचेज अगर आपने किया है दैट इज़ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC क्लेम कर रहे हो. सो इन दिस केस आपको CA/CMA सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है. रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC फॉर जीरो डेट सप्लाईज हो गया. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है. क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आपको टैक्स तो लगाना ही है. ठीक है. पास ऑन तो बर्डन करना ही है, पर जो आपको अनयूटिलाइज ITC हो रहा है उसका आप रिफंड फाइल कर रहे हो. रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई विच हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड. ठीक है. रिफंड वाउचर वाला केस है ये. देन रिफंड ऑफ रॉन्ग टैक्स पेड, इसमें भी ज़रूरत नहीं है. देन रिफंड ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट बॉर्न बाय नोटिफाइड एप्लीकेंट्स. ठीक है. इन सब में आपको CA सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है. क्लियर? ओके. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 5 पार्ट्स. नेक्स्ट इज टाइमलाइंस फॉर रिफंड. अब कुछ टाइमलाइंस की हम बात करते हैं. अब हमने ऑलरेडी सीखा है रिफंड कितने टाइम में आपको फाइल करना है. क्या टाइम लिमिट है? 2 years फ्रॉम रिलेवेंट डेट. 2 साल फ्रॉम रिलेवेंट डेट. रिलेवेंट डेट भी हमने सीखा. 2 years फ्रॉम रिलेवेंट डेट यू हैव टू काउंट. अब जैसे ही आप लोग अप्लाई करते हो उसके 15 दिन में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा. ठीक है. जैसे ही आपने अप्लाई किया ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा तो एक ARN जनरेट होगा. ARN जनरेट होने से 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा. ठीक है. एक्नॉलेजमेंट मिलने के 7 दिन में, ध्यान देना, एक्नॉलेजमेंट मिलने के 7 दिन में आपको 90% ऑफ रिफंड क्लेम सैंक्शन हो जाएगा. ठीक है. विद इन 7 days फ्रॉम द एप्लीकेशन यू विल बी ग्रांटेड 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम. जितना भी आपने क्लेम किया उसका 90% आपको रिफंड क्लेम मिल जाएगा विद इन 7 days फ्रॉम द एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट डेट. सॉरी, एक्नॉलेजमेंट डेट. क्लियर है? And the balance 10% will be allowed after proper verification by the proper officer, and this 10% will be allowed within 60 days from application date. Within 60 days from the application date. Clear? If refund is not granted within this time limit, the refund will be given along with the interest at the rate of 6% from 61st day to the date till which I am getting refund. Okay. However, if refund is granted on the basis of a order of higher or appellate authority, ठीक है, हायर अथॉरिटी के ऑर्डर के बेसिस पे अगर आपको रिफंड मिल रहा है तो आपको 9% पे इंटरेस्ट का रेट मिलेगा. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ओके. नाउ वी आर कमिंग टू अ कंसेप्ट वेयर रिटेल आउटलेट्स को रिफंड मिलेगा. ध्यान देना, जो रिटेल आउटलेट्स होती है, जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है या ड्यूटी पेड शॉप्स, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में होती है. क्लियर है? अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो भी ये रिटेल आउटलेट्स लोकेटेड है, इफ़ दे आर सेलिंग टू अ एलिजिबल पैसेंजर, दिस ट्रांजैक्शन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. क्लियर है? इसके ऊपर आपको GST पे नहीं करना. ओके. रिटेल आउटलेट्स आर नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्सेस if they are selling to eligible passenger because this transaction is exempt. This transaction is exempt from GST. Clear? However, when these goods are sold, you are not required to collect taxes. Okay. But when these goods have been purchased, at that time you have paid taxes. At that time you have paid taxes, for example 18%. So how retail outlet has to claim refund? Okay. So rule 95A is specifically inserted for these kind of transactions. Okay. So in order to claim refund, on these transactions, this retail outlet has to supply goods to an eligible passenger. किसको supply करना है? Eligible passenger. Who is the eligible passenger?
eligible passenger is a person who is not normally resident in India, जो इंडिया में नॉर्मली रेसिडेंट नहीं है, who enters India for stay period of not more than 6 months, जो इंडिया में 6 महीने से कम के लिए रहने के लिए आया है, ठीक है, एंड जो इंडिया में रेसिडेंट है ही नहीं, ठीक है, नॉर्मली नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, in that case retail outlet is going to claim refund. So retail outlet has to maintain a register of goods sold to whom. Clear है? For example, I am a eligible passenger. Okay, ABC store is a retail outlet. He is selling the goods to me. Okay, so he has to take a passport number of mine. Okay, okay. When I have arrived in India, passport पर एक थप्पा होता है. Clear है? In passport there is one stamp. Okay, which says that when you have entered into India. Okay, how much days you are going to live in India. So this register has to be maintained, okay, by a retail outlet, and then retail outlet can submit a refund claim for accumulated input tax credit. Okay, अब इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका मिल रहा है, ध्यान देना, ये लोग जीरो रेटेड सप्लाईज नहीं कर रहा है, इनको अपने अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड नहीं मिल रहा है, इनको रिफंड मिल रहा है इनवर्ड सप्लाईज ऑफ सच गुड्स, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की ही बात हो रही है, क्योंकि these are the retail store, they are going to sell goods, so obviously we are talking about goods. Okay, so whatever GST they have paid while purchasing from indigenous suppliers, that is from India. Okay, मैंने अगर सेल किया है रिटेल आउटलेट को, मैंने GST चार्ज किया, बट इफ रिटेल आउटलेट इज सेलिंग टू अ फॉरेन passenger, that is eligible passenger, they are not going to collect taxes, so it will result in accumulation of ITC to retail outlets. So this accumulation of ITC will be claimed as a refund by retail outlet. Okay, so they have to claim refund, shall furnish the application for refund. एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, इसमें इन्वॉइसेस जो परचेज की होंगी वो आपको देनी पड़ेंगी, आपको सेल के इन्वॉइसेस देने पड़ेंगे, एंड जो एनेक्शर है दैट विल कंटेन द डिटेल्स ऑफ पैसेंजर हु हैज़ परचेज द गुड्स, ठीक है, वो आपको डिटेल संभाल के रखना पड़ेगा. What are the conditions for claiming refund? What are the conditions? The inward supplies of goods were received by retail outlet from a registered person against tax invoice. जो भी आप परचेस करते हो इंडिजीनियस परचेस, ठीक है, आपको टैक्स इनवॉइस के अंडर परचेस करना पड़ेगा, ठीक है, एंड आपको सेल किसको करना है, आउट गोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को आपको सेल करना है. क्लियर? नेम एंड GST नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट आर मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाईज. जो भी आपको सेल कर रहा है, ठीक है, जो भी पर्सन आपको सेल कर रहा है उसमें आपके रिटेल आउटलेट का नाम एंड GST नंबर होना चाहिए, एंड सच अदर कंडीशंस एज मे प्रिस्क्राइब्ड. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोपोर्शनेट रिफंड क्लेम. ठीक है, नाउ दिस प्रोपोर्शनेट रिफंड क्लेम इट इज ऑल्सो एन अमेंडमेंट इन प्रीवियस अटेम्प्ट का अमेंडमेंट है ये. रूल 92 सब रूल 1A, ठीक है, रूल 92 सब रूल 1A. नाउ गवर्नमेंट वाज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. ध्यान देना प्रॉब्लम किस तरह से हो रहा था. फॉर एग्जांपल, आई हैड ITC. ओके, मेरे पास ITC है IGST का, एंड आई हैव पेड रॉन्ग IGST. ध्यान देना, आई हैव पेड रॉन्ग IGST. मेरे को पे करना था CGST SGST, हाउएवर आई हैव पेड रॉन्ग IGST. ओके, नाउ गवर्नमेंट इज डिटरमाइनिंग द मैनर इन विच यू हैव पेड रॉन्गली. आपने रॉन्ग ITC का रॉन्ग आउटपुट का पेमेंट कैसे किया है, किस मोड में किया है, ठीक है, क्या आपने ITC का यूज़ किया है या क्या आपने कैश लेजर में पेमेंट किया. ठीक है, पहले कैसा था, इस रूल आने से पहले कैसा था, इवन इफ यू आर पेइंग दिस आउटपुट बाय यूटिलाइजिंग ITC, still you are getting refund in your bank account. Please mind the words. If you are paying this output, for example, my output was 90 and my ITC was rupees 40. Okay, so only rupees 50 I have paid through electronic cash ledger. Okay, however, government was giving me refund in my bank account to the tune of rupees 90. Okay, clear? But after this rule, that is after insertion of this rule, government said the refund will be eligible to you in the proportion of the payment. Okay, so in this case I am paying, for example, output is rupees 100, input is rupees 60, so 60 rupees I am paying through electronic cash ledger, and 40 rupees I am
utilizing ITC to pay this rupees 100. Okay, credit ledger. Clear? So 40% of this 100, the refund of this 40% of this rupees 100 will be recredited to my electronic credit ledger, and the 60% of the rupees 100 will be granted to me in electronic cash ledger. I hope this is clear. समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में द प्रपोर्शन के बेसिस पे आपको रिफंड मिलेगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा, नहीं, आपको प्रोपोर्शनेटली रिफंड सैंक्शन होगा. सो दिस इज द रूल. अब कौन से केसेस में मिलेगा रिफंड? इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट फाइनलाइजेशन, ओके, एंड एनी अदर ग्राउंड. ओके, सो इन केसेस में आपको प्रोपोर्शनेटली रिफंड मिलेगा. कौन से प्रोपोर्शन में? in the proportion in which you have paid output tax. If you have paid output tax by utilizing ITC of 50%, then 50% will be recredited to your electronic credit ledger. If you are paying 50% of your liability through electronic cash ledger, then it will be recredited to electronic cash ledger to the tune of 50%. I hope this is clear. Okay, so here we complete with the rule 92(1)(a). Now master circular. Then rule 96(b), which we have already discussed. Now comes to the master circular. Okay, now this master circular has replaced many circulars. Okay, there were many multiple circulars issued from time to time. This master circular has combined all the circulars and has given one full-fledged circular on refund procedures. Okay, so filing of refund application and acknowledgement. So as I have already discussed, within 15 days from filing of application you will be receiving acknowledgement. Okay, so acknowledgement will be that's 15 days will be counted from ARN number. Clear? Next is assignment of proper officer. So whatever you have applied for refund, it will be assigned to proper officer. If it is assigned to a wrong officer, then such wrong officer can reassign to the proper officer within 3 days. Clear? Next one is all returns to be filed before application. If you are applying for refund, the mandatory requirement criteria is you have to file all the returns, that is GSTR 3B, GSTR 1. Okay, undertaking to pay back erroneous refund claim. Okay, if government will be giving you the refund claim erroneously, okay, that is example 90%, or if you are ineligible but government has given you refund claim, and then after certain discovery it is found that it was ineligible, so you are required to pay back the erroneous refund claim which was sanctioned to you. Such undertaking you have to provide. Next is acknowledgement and deficiency memo. Deficiency memo means your application is rejected. Okay, so in that case you have to apply for fresh refund claim again. Okay, within 2 years from relevant date to clear the deficiency. Next is very important point, provisional refund is more than final refund amount. This is very important point. Let us take one example. Supposingly you have applied for refund claim of rupees 100. Okay, and within 7 days from the acknowledgement date you have received 90% of this refund claim, that is rupees 90. However, once officer scrutinized, he arrived at a figure of rupees 70. Okay, means you were actually eligible for claim of rupees 70. However, you have been granted the claim of rupees 90. So these rupees 20 officer will be recovering from you. Okay, officer will be recovering from you by issuing a notice under rule under form RFD 08. Clear? Under section 54, and he will be issuing show cause notice, and he will be asking you that why this amount shall not be recovered from you. Okay, and under section 73 or 74, such erroneous refund claim shall be recovered. Okay, if it is a fraudulent case then 5 years, and if it is a normal case other than fraud then 3 years. Other important points, amount of refund erroneously sanctioned shall be credited to electronic liability ledger. Okay, so whatever this 20 rupees excess refund I have been granted,
this will be credited to my electronic liability ledger. Clear? Amount of rejected refund shall be recredited to the electronic credit ledger. We have already seen this. In such cases, it may be noted that RFD 08 and RFD 06 would be considered as show cause notice. Okay, done. Rejected refund already seen. Next, GSTR 2A. If my supplier has filed GSTR 1, I am going to see that invoice details in GSTR 2A. Okay, so whatever details are shown in GSTR 2A, that invoices shall not be insisted upon. Okay, so I can claim refund of those invoices which are furnished by my supplier. So hard copy invoices of those which are reflecting in GSTR 2A are not required. Okay, and my refund will be restricted up to the invoices which are shown in GSTR 2A. Okay, if my supplier is not filing his GSTR 1, then I am not eligible to file refund claim for those invoices. Clear? Next is formula for rule 18 and 4A and 4B has to be applied on consolidated basis, not as per tax heads. Okay, it has to be the sum total of all the tax heads and amount of electronic credit ledger debit amount. It will be as per the discretion of taxpayer. Okay, then quantum of refund we will be learning in the point number 19. Zero rated supplies before furnishing LUT may be allowed on ex post facto basis. For example, you have exported goods. Okay, but before applying LUT you have exported goods. Okay, so can the benefit of LUT will be allowed to you? Answer is yes. On my case to case basis it will be allowed. Okay, now export after expiry of time limit under LUT may be allowed if goods have actually been exported after 3 months from the date of invoice, asking for the self declaration for prosecution with every refund claim. Okay, so LUT is only given to such persons who have not prosecuted in last 5 years. Okay, for the amount of tax evasion more than 2 crore 50 lakhs. So if you are a eligible person, then only you can claim LUT. Next is during the processing of refund claim, the value of goods declared in GST invoice and the value in corresponding shipping bill, the lower of those two shall be considered for the purpose of determining turnover of zero rated supply of goods. Okay, FIRC or BRC is not required for export of goods. However, as per rule 96B, we can say that realization of export proceeds are mandatory. Clear? In case of zero rated supply of exempted goods, LUT is not required. Clear? We have already seen this. Next is no refund for inverted duty on input service and capital goods. Yes, we have already seen this. Stores and spares and for capital goods, the expenditure on which GST has been charged as a revenue expenditure in books of accounts cannot be held to be capital goods. Hence, refund for unutilized ITC can be claimed in respect of such stores and spares. If such stores and spares are not debited in the capital account, that is fixed asset में अगर आपने डेबिट नहीं किया है, आपने उसको P&L में डेबिट किया है, तो आप उसका refund claim as a unutilized ITC कर सकते हो. However, if you are debiting in the capital account, that is fixed asset account, then you are not eligible to claim refund. Okay, when there are multiple inputs, ध्यान देना, when there are multiple inputs attracting different rates of taxes, some of which have lower or equivalent rate of output tax, the term net ITC would cover all such inputs. Yes, we have already seen this important point when we were discussing documentation for refund. I hope this is clear. हम जब डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे तब हमने ये पॉइंट को डिस्कशन में लाया था. क्लियर? Tax deductor or collector may claim refund of tax deposited in the wrong ledger, wrong head after filing GSTR 7 or 8 under the tab refund of excess payment of taxes. नेक्स्ट इज रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्ट्स. मर्चेंट एक्सपोर्ट में अगर आप रिफंड करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी कर सकते हो या तो फिर एनी अदर में भी कर सकते हो. क्लियर है? एनी अदर में आप कर सकते हो. ठीक है, मर्चेंट एक्सपोर्ट कैन बी क्लेम्ड अंडर द हेड एनी अदर. ओके,
अब यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर जो पॉइंट है ना, हाउएवर सच आवर एक्सपोर्टर कैन एक्सपोर्ट गुड्स ओनली अगेंस्ट एलयूटी, यस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट। ध्यान देना, जब भी मर्चेंट एक्सपोर्ट से मैं कुछ कंसेशनल रेट पे खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम बाउंड टू एक्सपोर्ट दोज गुड्स अंडर एलयूटी ओनली। अगर मेरे पास एलयूटी नहीं है तो मैं कंसेशनल रेट का बेनिफिट नहीं ले सकता, ठीक है। इन दैट केस मेरे सप्लायर ने मुझे पूरा टैक्स लगा के गुड्स को बेचना चाहिए, एंड देन आई कैन एक्सपोर्ट विदाउट एलयूटी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, द सप्लायर हु सप्लाइज गुड्स एट कंसेशनल रेट इज ऑल्सो एलिजिबल टू claim refund under inverted duty structure. Yes, we have already seen. Limit of 1000 will be applied on each tax head. Yes, this also we have already seen. Maximum refund admissible, ठीक है, कितना आपको रिफंड मिल सकता है, तो लोअर ऑफ जो हमने फार्मूला सीखा 89.4 और 89.5 में, वो अमाउंट, और बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। हमारा टैक्स पीरियड जिधर जब एंड हुआ तब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस था वो, या तो फिर जिस दिन हमने रिफंड के लिए एप्लीकेशन किया उस दिन हमारे क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस था। इन तीनों में से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा, दैट अमाउंट विल बी रिफंडेड टू यू। क्लियर है? ओके, नाउ 96B हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। नाउ एज पर रूल 96B, इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। अनयूटिलाइज आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और ऑन इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे आप एलयूटी के अंडर करो, चाहे आप एलयूटी ना हो आपके पास, ठीक है, आपको पैसा लेके आना है, ठीक है। कब तक लेके आना है? विद इन द टाइम लिमिट एज प्रिस्क्राइब अंडर फेमा। अगर आप टाइम लिमिट में नहीं लाते हो तो आपसे रिकवरी की जाएगी जितना भी अमाउंट आपको रिफंड दिया गया। क्लियर हो ये बात? कैसे रिकवरी करेंगे? अंडर सेक्शन 73 74 का जो शो कॉज नोटिस का टाइम लिमिट्स है उसके अंडर इशू करेंगे हम आपको शो कॉज नोटिस, एंड आपसे रिकवरी की जाएगी। हाउएवर अगर आपको पैसा आता है बाद में, ठीक है, जब भी आता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट या जो भी है, ठीक है, तो आपको रिफंड वापस से दिया जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर गिविंग अस द डिटेल्स ऑफ दिस अमाउंट रियलाइज्ड। ओके, यहाँ पर देखना, whenever the sale proceeds are realized by the applicant, okay, after the amount of refund has been recovered। मेरे से गवर्नमेंट ने पैसा वापस ले लिया रिफंड का, ऐसा बोल के कि फीमा के टाइम लिमिट में आपको पैसा नहीं आया, मेरे को पैसा वापस दो, हमने दे दिया, ये लो भाई, ठीक है। और जब भी हमको पैसा मिलता है उसके 3 महीने में, विद इन द पीरियड ऑफ दोस 3 months फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दोस मनी, ओके, आई हैव टू इंटीमेट टू माई प्रॉपर ऑफिसर कि येस आई हैव रिसीव्ड द अमाउंट, प्लीज़ सैंक्शन मी द अमाउंट ऑफ रिफंड। तो जितना भी मुझे पैसा मिला होगा उतने एक्सटेंट का मुझे रिफंड भी दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एंड दिस कंडीशन इज ओनली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विथ और विदाउट एलयूटी। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं जो आपको बोल रहा था कि जो 1.5 टाइम्स वाला कंडीशन यूजलेस है, वो इसलिए है, ध्यान देना। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था? गवर्नमेंट्स इंटेंशन, ध्यान देना, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था? टू रिड्यूस द ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट को कम करना था, मतलब जो पर्सन अपना टर्नओवर ज़्यादा दिखाता है एक्सपोर्ट का उसको कम करना था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस ओवर स्टेटमेंट को कम करने के लिए टर्नओवर पे कैप लगा दिया, ठीक है, टर्नओवर पर भी कैप लगाया एंड पैसा भी लाने बोला उसको, ठीक है। मतलब इनवॉइस वैल्यू जो थी, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू, ध्यान देना, इनवॉइस वैल्यू उसको लेकर के आना है इंडिया में, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से अगर समझते हो, समझेगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव एक्सपोर्टेड एट ₹15,000, ठीक है, बट इंडिया में ये गुड्स 2000 में बिकता है। क्लियर है? ओके, आपने मेरा रिफंड कैप कर दिया 2000 इंटू 1.5 टाइम्स पर, आपने मेरा रिफंड कैप कर दिया, ठीक है। अब आप मुझे बोलते हो कि भाई 15,000 आप लेके आओ इंडिया के बाहर से, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैंने रिफंड आपसे लिया ही बहुत कम अमाउंट का है, 3000 के ऊपर का तो मैंने आपसे रिफंड लिया है, ठीक है, तो मैं पूरा 15,000 लेके आऊँ, ठीक है, 15,000 मेरे को लाने का, एंड रिफंड कितने पे मिल रहा है मेरे को? सिर्फ 3000 पर। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, सेकेंड ओपिनियन ऑफ माइन इज, अगर आपको ये 15,000 पर्सन लेके आ रहा है बाहर से एज पर रूल 96B, ठीक है, अगर नहीं लाता तो आप उसका रिफंड रिजेक्ट कर रहे हो, बरोबर है। अगर पैसा नहीं आया तो रिफंड रिजेक्ट करने वाले हो कि नहीं? यस, आप रिफंड को रिजेक्ट करने ही वाले हो, तो आप एट फर्स्ट इंस्टेंस क्यों कैप लगा रहे हो, ठीक है।
जब आप रिफंड रिजेक्ट करने ही वाले हो, अगर 15,000 नहीं आता है तो आप टर्नओवर पर कैप क्यों लगा रहे हो? समझ में आई बात? सो दोनों में से एक ही होना चाहिए, या तो रूल 96 बी या तो 1.5 टाइम्स का कैप। दोनों का साथ में रहना इज नॉट एडवाइजेबल, ठीक है? इट इज डिस्करेजिंग द एक्सपोर्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग वन सर्कुलर विच वॉज इशूड इन दिस अटेम्प्ट, ठीक है, विच इज अमेंडमेंट फॉर यू। अगर आपको एडवांस मिला है, ध्यान देना, आपको एडवांस मिला है, क्लियर है, एंड आपने सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं किया एंड आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है, आपने गुड्स का सप्लाई नहीं किया, नॉट सप्लाइड, बट यू हैव इशूड टैक्स इनवॉइस, ओके, पर बाद में सप्लाई हुआ ही नहीं, देन इन दैट केस यू हैव टू क्लेम रिफंड बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट। आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा एंड देन आपको लायबिलिटी आपका कम हो जाएगा, क्लियर है? हाउएवर अगर आपके पास कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं था इन दैट मंथ, ठीक है, इन दैट मंथ, इन दोज मंथ्स आपके पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी था ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही टैक्स पेमेंट किया, तो आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पिछली बार दिखाया होगा। करंट मंथ में सिर्फ क्रेडिट नोट दिखाने को है, क्लियर है? सो जब आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट नोट दिखाना है तो आपको रिफंड जो है वो सिर्फ क्रेडिट नोट के बेसिस पर मिल जाएगा, ठीक है? एनी अदर करके एक टैब होता है, उसमें आप रिफंड क्लेम अप्लाई कर लो, क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स, जब आपके पास सिर्फ क्रेडिट नोट है और टैक्स इनवॉइस है ही नहीं दिखाने को, देन द अमाउंट वुड बी एलिजिबल फॉर रिफंड। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट केस वुड बी, आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया। फर्स्ट केस में क्या था, आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया तो आपको क्या इशू करना पड़ा? क्रेडिट नोट टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ टैक्स इनवॉइस। हाउएवर in the second case this case you have not issued tax invoice। आपने टैक्स इनवॉइस तो इशू किया ही नहीं है, आपने क्या इशू किया था? उसको रिसिप्ट वाउचर इशू किया था, ठीक है, रिसिप्ट वाउचर। अब जब आप उसको पैसा वापस दोगे फॉर नॉन प्रोविजन ऑफ सप्लाई, इन दैट केस यू आर गोइंग टू गिव हिम अ रिफंड वाउचर। So in case of refund voucher, refund can be allowed on the basis of that document under the tab excess of tax। I hope this is clear, okay? Next one, refund issues in respect of tax invoices। अगर आपको GSTR 1 में आपके सप्लायर ने सेल दिखाया ही नहीं है आपको, ठीक है, मीन्स आपका परचेज नहीं दिख रहा है GSTR 2 में, देन आपका रिफंड विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू दोज इनवॉइसेस विच आर शोन इन GSTR 1। क्लियर है? जितना GSTR 1 में आपको दिख रहा है उतने का ही रिफंड मिलेगा, ठीक है? बट ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो GSTR 1 में दिखते ही नहीं है, ध्यान देना, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो GSTR 1 में दिखते ही नहीं है, उन डॉक्यूमेंट्स का आपको रिफंड मिलेगा इवन इफ दे आर नॉट शोन इन GSTR 1। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? वो होते हैं RCM के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सेल्फ इनवॉइस, ISD का डॉक्यूमेंट, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। आई होप दिस इज क्लियर। These documents, even if they are not shown in GSTR 1, you can claim refund, okay? So in simple words, if B2B purchases are there, okay, B2B purchase, वो obviously GSTR 1 में दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है GSTR 2 में आपके, ठीक है, सामने वाले के GSTR 1 में, मीन्स आपके GSTR 2 में अगर नहीं दिख रहा है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा फॉर दोज पर्टिकुलर इनवॉइसेस। हियर वी कंप्लीट विद द एंटायर चैप्टर ऑफ रिफंड, ठीक है? I hope you have enjoyed this session a lot. Please hit the like button if you really like this chapter. In this 1.5 hours, we have completed entire refund chapter. Okay, this would be a really very interesting lecture for you. I hope. Stay tuned for further lectures. Thank you very much for your valuable time.